پاکستان امن چاہتا ہے مگر افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ افغان حکومت کو بارہا سفارتی و معاشی تعاون کی پیشکش کی۔ افغان طالبان فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کی مدد کر رہے ہیں، ملک کو دہشت گردوں اور سہولت کاروں سے پاک کریں گے۔ فیلڈ مارشل کی پشاور میں قبائلی ماہرین کے جرگے سے ملاقات۔ قبائلی عوام کو غیر مشروط تعاون پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ قبائلی ماہرین کا پاک فوج کی مکمل حمایت کے عزم کا اعادہ۔ افغان طالبان کا مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ۔ افغان وفد نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان کا امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ۔ افغان طالبان سے دوبارہ مذاکرات پر رضامند۔ ترکی کی درخواست پر پاکستان آمادہ ہوا۔ مذاکرات پاکستان کے مرکزی مطالبے پر ہوں گے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کا استنبول میں قیام بڑھ گیا۔ طالبان رجیم بھارتی پراکسی۔ نئی دہلی پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ رہا ہے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوئی تو گھس کر ماریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا امن نہیں ہوگا تو آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ قطر اور ترکی مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوشاں ہیں، ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا۔ پاکستان اور امریکہ کا پرامن، مستحکم اور محفوظ افغانستان کی اہمیت پر زور۔ افغان سرزمین سے پیدا چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹا جانا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے قائم مقام امریکی ناظم الامور کی ملاقات۔ پاک امریکہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ خواجہ آصف اور نیٹلی بیکر کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت رفتار پر اظہار اطمینان۔ باجوڑ میں فورسز کی بڑی کامیابی، ہائی ویلیو ٹارگٹ اڑا دیا۔ خارجی نور ولی کے نائب سمیت 4 خارج جہنم واسع۔ ہلاک خارج میں اہم خارجی کمانڈر امجد عرف مزاحم شامل۔ خارجی کمانڈر امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ کمانڈر امجد فتنہ الخارج کی رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ پاک فوج نے گزشتہ شب پاک افغان سرحد پر خارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ محسن نقوی نے کہا کہ قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بلوچستان میں بھی بھارتی پراکسیز پر کاری وار۔ پاک فوج کے 2 کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ پاک فوج سے شدید جھڑپ میں فتنہ الہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق چلتن پہاڑی علاقے میں 14 دہشت گرد مارے گئے۔ کیچ کے علاقے بولیدہ میں دہشت گردوں کا ٹھکانہ تباہ، 4 دہشت گرد ہلاک۔ بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد۔ ایوان صدر میں بڑی بیٹھک۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی حکمت عملی فائنل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اہم ملاقات میں شریک ہوئے۔ آزاد کشمیر کے نئے قائد ایوان کے انتخاب پر مشاورت۔ سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر وہ AI کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ شہباز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں سعودی عرب نے مفت تربیت کی پیشکش کی ہے، نوجوانوں کو AI اور IT کی تربیت دلوائیں گے۔ لاکھوں بچوں کو تعلیم کے لیے سعودی عرب بھجوائیں گے۔ تعلیم کے لیے 500 ارب روپے خرچ کرنا پڑے تو کریں گے۔ نوجوانوں کے لیے تمام وسائل استعمال کریں گے۔ نوجوان ہی ملک کو آگے لے کر جائیں گے۔ بیٹی کو ریکگنائز کریں، آپ کی بھرپور تالیوں میں خواتین و حضرات۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وزیر اعظم نے بلوچستان کی بیٹی کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا۔ خواتین و حضرات، سٹینڈنگ اوویشن، بھرپور تالیاں۔ اسلام آباد میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب۔ طلباء ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پرجوش نظر آئے۔ ایک طالب علم نے روانی سے عربی بول کر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے بلوچستان سے آئی طالبہ کو اپنی کرسی پر بٹھایا۔ عزت افزائی پر طالبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा ओमान और ईरान के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर से अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी और जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नमानी का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वीज़ा मसाइल के हल से मुताल्लिक़ इक़दामात पर बातचीत। पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर ज़ोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि ओमान के साथ हर सतह पर शराकत दारी बढ़ाना चाहते हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मज़ीद हुनरमंद अफराद ओमान जा सकेंगे। कराची की टायर फैक्ट्री में लगी खौफनाक आग 9 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। शहर भर से फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स वाचकोट पहुंचा दिए गए। तेजी से फैलती आग की शिद्दत तीसरे दर्जे की करार। टायरों में लगी आग तेज हवाओं की वजह से बेकाबू। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों से खौफनाक शोले बुझाने की कोशिशें। आग पर काबू पाने के लिए स्नार्कल से पानी का तेज छिड़काव। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस इदारों और कंपनियों की शनाख्त करें। तहकीकाती कमेटी 3 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माजी में सेल्स टैक्स फ्रॉड पर इजहार बरहमी। ट्रायल के निज़ाम का बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंसी फर्म से फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने आलमी कॉन्फ्रेंस में केस स्टडी की पजीराई पर FBI टीम की तारीफ भी की। ट्रंप और शी जिनपिंग मुलाकात। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग पर बर्फ पिघल गई। वाशिंगटन और बीजिंग में 1 साला तिजारती मुआहदा तय पा गया। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर आए टैरिफ में 10% कमी का ऐलान। चीन ने नायाब मादनियात की बरामद पर इत्तफाक कर लिया। जनूबी कोरिया के शहर बोसांग की एक एयरबेस पर 2 बड़े आलमी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। 6 साल बाद 1 घंटा 40 मिनट की अहम मुलाकात नतीजा खेज साबित हुई। ट्रंप ने मुलाकात को इंतहाई मुस्बत करार दिया। 10 में से 12 नंबर भी दे दिए। चीन और अमेरिका को बदला लेने के खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तिजारत और मईशत को ताल्लुकात बढ़ाने का जरिया बनना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिकी सदर से मुलाकात के बाद बयान। कहा, चीन कभी किसी मुल्क को चैलेंज या तब्दील करने की कोशिश नहीं करता। बातचीत महाज़ाराई से बेहतर है। अमेरिका और चीन के पास AI में ताउन का अच्छा मौका है। आलूदगी ने लाहौर को नरखे में ले लिया। हद निगाह में कमी, सांस लेना भी मुहाल। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बरकरार। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 233 रही। जौहर टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 1021 रिकॉर्ड। पावर जोन 888। इकबाल टाउन में शरह 838 रही। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची में तेज़ रफ्तार डंपर ने एक और जिंदगी का चिराग बुझा दिया। कोरंगी इंडस चौरंगी पर डंपर ने बाइक सवार को कुचल दिया और गाड़ियां रौंद डालीं। कराची के अलमनाक हादसे की फुटेज सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेकाबू डंपर से जान बचाकर भागा। मुश्तइल अफराद ने डंपर जला दिया। ड्राइवर फरार। इस्लामाबाद के SP अदील अकबर की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। SP अदील अकबर ने खुदकुशी नहीं की थी। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। IG रिपोर्ट अपनी सिफारिशात के साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश करेंगे। मैं फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें उन्होंने कोई 10 बिलियन रुपीस प्रॉमिस किए हैं और बजटेड भी किए हैं कि जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में पुलिस के इस्तेमाल होनी है, जो एयर कैपेसिटी है जिसमें ड्रोन कैपेसिटी स्पेशली है और नाइट कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए G2G हम जा रहे हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ख़ास तौर पे क्वेटा शहर में जो ड्रग्स हैं उसके अगेंस्ट एक मैसिव किस्म का हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह ताला ये ड्रग्स के अगेंस्ट उस अंदाज में जाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो इस तरह हम तबाह होने आसानी से नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। वज़ीर आला बलूचिस्तान का पुलिस के लिए जदीद ड्रोन हासिल करने का ऐलान। सरफराज बुगटी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने 10 अरब रुपए देने का वादा किया है। पुलिस के जवान बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। पुलिस के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी।
सरफराज बुक्टी ने यह भी कहा कि कोयटा में भरपूर इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन होगा। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। अदालत ने छठी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अलीमा खान 26 नवंबर एहतजाज केस में आज भी अदालत में पेश न हुई। अदालत का अलीमा खान और 4 जामिनों की जायदादें तलाश करके जब्त करने का हुक्म। हम ये समझते हैं कि जब हुकूमत कायम होगी, एक मुल्क बनेगा, उसमें एक हुकूमत कायम होगी, वो हुकूमत हमारी वेलफेयर के लिए काम करे। कोई इलाका ज़्यादा प्रॉस्पर है, कोई सूबा ज़्यादा प्रॉस्पर है, कुछ इलाके और कुछ सूबे बिल्कुल पीछे रह गए हैं। तो इन रीजनल इनइक्वालिटीज़ से पाकिस्तान को निकलना होगा अगर वो तरक्की करना चाहता है। एक फेडरेशन के तहत हमारे ये 4 सूबे एक मुल्क बनाते हैं। जो 10 बड़े मुल्क हैं दुनिया के, वो अपने आप को किस तरह से चला रहे हैं। आज़ादी के वक्त में इंडिया में सूबों की तादाद 9 थी। आज उनके जो यूनिट्स हैं, यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, उनकी तादाद 39 है। और हम बड़े साबित कदम हैं, हम उसमें 4 पे ही खड़े हुए हैं अभी तक। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सूबे सिर्फ 4 हैं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे, आज 39 हैं। हम इतने साबित कदम हैं कि 4 सूबों पर ही खड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, सोशल वेलफेयर और इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान दुनिया में वेलफेयर के इंडेक्स में आखिरी 10 ममालिक में से है। हमने सिर्फ 4 से 5 बड़े शहरों को तरक्की दी। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। खान यूनिस पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैतुलहिया पर इसराइली हमले में 2 फ़लस्तीनी जाँ बहक। 2 रोज़ के दौरान इसराइली हमलों में 52 बच्चों समेत 110 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का गजा में खुराक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। समुद्री तूफान मेलिसा की तबाहकारियाँ जारी। जमैका और क्यूबा के बाद बहामास की जानिब बढ़ने लगा। मुख्तलिफ हादसात में हलाक अफराद की तादाद 30 से ज़ायद हो गई। हेटी में 25, जमैका में 4, डोमिनिका में 1 हलाकत हुई। क्यूबा में 7 लाख से ज़ायद अफराद को नकले मकानी करना पड़ी। जमैका के वज़ीर आज़म ने पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। अमरीका ने इमदादी सरगर्मियों के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। पाकिस्तान टीम की T20 सीरीज में वापसी का मिशन। शाहीन और प्रोटियज आज दूसरे T20 में आमने सामने होंगे। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम मेज़बानी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में शिकस्त दी थी। गुलकार आसिम अजहर के मद्दाहों के लिए खुशखबरी। आसिम अजहर ने 29वीं सालगिरह पर नया एल्बम रिलीज करने का ऐलान कर दिया। गुलकार का पहला सोलो एल्बम लॉस्ट एंड फाउंड 24 नवंबर को रिलीज होगा। और हॉलीवुड हॉरर एडवेंचर वेब सीरीज स्ट्रेंज थिंग्स का सीजन 5 फाइनल सीजन का वर्ल्ड प्रीमियर 6 नवंबर को लॉस एंजलिस में होगा।